गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंटिंग ऑफ हिमल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूज़। फ्रेंड्स, एज यूजुअल वी विल हैव ए डीप डाइव इनटू द सब्जेक्ट। और जब हम डीप डाइव करते हैं तो सर्टेनली वी वुड टेक अप सर्टेन कंट्रोवर्शियल इश्यूज़। अगर इसमें आपके कोई भी डिफरेंट ओपिनियंस हो, डिफरेंट व्यूज़ हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर व्यूज़ on my email or otherwise, so that we can have a better discussion, we can find a better answer to that. So friends, to begin the topic, basically these services are covered in the real estate services HSN 9972 और एंट्री नंबर 16 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 11/2017। और जनरली ये 18% पे टैक्सेबल हैं अनलेस सम एग्जम्पशन इज प्रोवाइडेड समवेयर। तो आज का जो हमारा स्कोप रहेगा डिस्कशन का वो मेनली होगा रेजिडेंशियल यूज़ वर्सेस कमर्शियल यूज़ वर्सेस अकोमोडेशन सर्विसेज। हम बहुत सारी केस स्टडीज़ लेंगे जिसमें देखेंगे कि रेजिडेंशियल यूज़, कमर्शियल यूज़ और अकोमोडेशन सर्विसेज में कहाँ कहाँ पर वो सिचुएशन फिट बैठती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम रेंटिंग इन रिलेशन टू इमल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को देखें, दिस हैज़ बीन डिफाइंड under notification number 12/2017, which means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangement in respect of the immovable property. So friends, this is the definition. Now अगर हम रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल वर्सेस अकोमोडेशन सर्विसेज की बात करते हैं तो देयर आर 3 एंट्रीज वेयर अवर फोकस वुड बी. First entry is property for commercial use or the commercial property. This is taxable at 18%. I am repeating, maybe the residential property for commercial use or the commercial property which is used for commercial use. This is taxable at 18% under entry number 16 of notification number 11/2017. दूसरी एंट्री फ्रेंड्स आती है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस. This is covered by entry number 12 of notification number 12/2017 and this is exempt. और तीसरी एंट्री हमारी आती है एकोमोडेशन सर्विसेज. इसमें है होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट बाई वट एवर नेम कॉल्ड फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस. यहाँ पर जो रेट है वो नील से 28% तक है. अगर रेंट जो है पर डे इज लेस देन 1000 रुपीज़ और इक्वलेंट, then the rate would be nil. अगर 1000 to 2500 है तो 12%, उसके बाद 18 and then 28%. तो this is the per day rent और equivalent. अगर हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए सपोजिंग आई गिव फॉर 25,000 then we have to arrive at the equivalent value, maybe it is 800 something. तो हम उसकी equivalent value निकाल लेंगे. If it is less than 1000 rupees then it would be exempt. अगर रेंटिंग के साथ, अगर अकोमोडेशन के साथ अगर फूड वैल्यू भी दी जाती है, सपोजिंग 800 रुपीज़ फॉर द रूम एंड 400 रुपीज़ फॉर द फूड, देन द टोटल वैल्यू विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट द एग्जम्पशन और द एनी रेट. अगर जैसे इस इलस्ट्रेशन में अगर 800 + 400 अगर चार्ज करते हैं देन द टोटल वुड बी 1200 एंड द रेट ऑफ टैक्स वुड बी एप्लीकेबल एट 12% अंडर accommodation services. So friends, we'll discuss these 3 entries. Repeat करता हूँ, commercial purposes, then residential dwelling for use as residence and the accommodation services. अगर आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग और अकोमोडेशन सर्विसेज को कंपेयर करें तो दोनों के दोनों में ही रेजिडेंशियल पर्पस है. बोथ आर यूज्ड फॉर रेजिडेंस पर्पसेस. The basic difference between the 2 entries is, in the first case there is the residential dwelling which is governed by entry number 12 and exempt, and the second case this is hotel, inn, guest house, club, etc., etc. So basic difference is between the dwelling and the hotels and etc. So applying the doctrine of harmonious construction, we may say that entry of residential dwelling would cover other premises other than hotel, inn,
guest house, club, campsite by whatever name called and used for residential or lodging purposes. So friends, before we proceed further, it is necessary to understand the meaning of residential dwelling. What is the meaning of residential dwelling? क्योंकि हमने पीछे देखा कि this is the basic difference between the two entries. If it is a residential dwelling, the rate of tax would be 0. Otherwise, it would be governed by accommodation entry. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का अगर हम जनरली मतलब देखें तो जनरली मीनिंग होता है इसका हाउस, यानी कि हम ऐसे अगर सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं रेजिडेंशियल हाउस. अगर आप दूसरे कंट्रीज की बात करें तो यूएस में कॉमर्स एंड ट्रेड चैप्टर 53 में रेजिडेंशियल ड्वेलिंग डिफाइन भी किया गया है. रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वहाँ पर है ए सिंगल फैमिली dwelling including the porches, that is the front, and stoops, that is the stairs, or it may be single family dwelling unit in a structure that contains more than one separate residential dwelling unit. Such, for example, हमारी cooperative societies को ले लीजिए, वहाँ पर more than one residential, and these are also called as a residential dwelling, and a single house would be treated as a residential dwelling. तो अब हम illustration लेना शुरू करते हैं कि किस सिचुएशन में हमारी रेजिडेंस वर्सेस कमर्शियल वर्सेस एकोमोडेशन होगी. अगर सबसे पहला केस लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि सपोजिंग माय फ्रेंड सुशील वर्मा गिव्स हिज रेजिडेंशियल हाउस फॉर द यूज ऑफ रेजिडेंस टू से राकेश गर फॉर यूज एज रेजिडेंस, सर्टेनली इट वुड बी एग्जाम्प्ट. अगर मान लीजिए उसी मकान में 2 कमरे हैं, 4 कमरे हैं और 2 कमरे राकेश गर्ग सीए प्रोफेशन के लिए यूज़ करते हैं या मिसेस राकेश गर्ग अपना एक बुटीक खोल लेते हैं. इन दैट केस व्हाट वुड हैपन? इन दैट केस सुशील वर्मा इज नॉट अवेयर व्हाट वी आर डूइंग. तो फ्रेंड्स, अगर हम एंट्री को दोबारा देखें तो एंट्री इज रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट. तो बेसिकली रेंटिंग व्हाट सुशील वर्मा हैज़ गिवन? सुशील वर्मा हैज़ गिवन द renting of residential dwelling. In that case, whatever I am doing, that is not as per the contract. Therefore, it would still be exempt even if I am using for certain other purposes till the time Sushil Verma is aware of my activities. एक और इसमें फर्दर आगे बढ़ते हैं, केस को आगे बढ़ाते हैं कि इसी केस में अगर सपोजिंग राकेश गर्ग सुशील वर्मा से बोलते हैं कि सर एक ऐसा कीजिए, मुझे अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, मेरी टर्नओवर हो रही है, तो आप एक एनओसी दे दीजिए. सुशील वर्मा एक एनओसी दे देते हैं. द मोमेंट सुशील वर्मा गिव्स द एनओसी टू राकेश गर्ग फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, दिस मीन्स दैट प्रॉपर्टी is to be used for commercial purposes, and if it is to be used for commercial purposes, it would be टैक्सेबल. अब अगर मान लीजिए पूरे के पूरे हाउस का वो एक ही रेंट होता है, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज मिक्स सप्लाई और टैक्सेबल एंड द एंटायर वैल्यू वुड बी टैक्सेबल. एक और दूसरा केस ले लेते हैं जरा, जो हमारा जनरल केस होता है कि सपोजिंग एक रेजिडेंशियल हाउस है जो फादर के नाम पे, उनका बेटा भी उनके साथ रहता है. बेटा इज डूइंग सर्विस इन सम एमएनसी. वो कहता है कि फादर साहब एक मुझे एचआरए एक रेंट की रिसीट दे दीजिए, मुझे एचआरए में एग्जम्पशन मिल जाएगा. ओके, फादर साहब गिव्स द रिसीट्स एंड दिस हाउस इज नाउ यूज्ड फॉर फादर एज वेल एज सन ऑफिशियली. तो टिल दैट टाइम इट इज एग्जम्प्ट. अब लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन में बेटे की जॉब चली जाती है. जॉब जाने के बाद वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. बिजनेस स्टार्ट करने के बाद फादर साहब से कहते हैं कि फादर कि जी मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए या शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन चाहिए, प्लीज गिव मी द एनओसी. Now the moment father sahab gives the NOC to the son for the purpose of carrying out the commercial activities, then this would be the commercial use. अब supposing father साहब कुछ भी रेंट नहीं चार्ज करते हैं बेटे से, then also it would be taxable because father and son are related person and they would be governed by schedule 1 and it would be taxable at fair market value. अगर रेंट चार्ज करते हैं तो वो बात है, अगर नहीं भी चार्ज करते हैं देन आल्सो इट वुड बी टैक्सेबल. एक और केस ले लेते हैं. सपोजिंग एक और हमारे फ्रेंड है, वो आकाश जो है, वो अपना फुल्ली फर्निश्ड हाउस देते हैं रेजिडेंस के लिए, से अगेन टू राकेश गर्ग. तो व्हाट वुड हैपन? नाउ द हाउस एज वेल एज फर्नीचर एंड ऑल दैट इक्विपमेंट्स आर गिवन. दिस इज ए कंपोजिट सप्लाई, इट वुड बी टैक्सेबल. सॉरी, इट वुड बी एग्जम्प्ट.
केस को इफेक्ट्स थोड़े से चेंज करते हैं। अब आकाश और राकेश गर्ग कहते हैं कि नहीं 50,000 रुपये पे रेंट था, 50,000 रुपये पे स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा लग जाती है। एज्यूमिंग वी आर एज्यूमिंग दैट देयर इज ए प्रॉपर एग्रीमेंट, प्रॉपर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, 50,000 पे स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा लग जाती है, इसलिए ऐसा करते हैं 30,000 फॉर द रेंट हाउस रेंट कर लेते हैं, 20,000 फॉर द रेंटिंग ऑफ द फर्नीचर एंड फिक्चर। वट वुड हैपन? Will I be required to pay GST on 20,000 rupees? Again, my answer is no, because it would be treated as a composite supply where two supplies are made in conjuncture with each other. देखिए ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकती थी, therefore these would be again exempt at entire value 30,000 plus 20,000, both would be exempt. एक दूसरे केस, एक और केस स्टडी ले लेते हैं। उस केस स्टडी में एक लिमिटेड कंपनी सपोजिंग एक पूरी की पूरी बिल्डर से टावर खरीद लेती है जिसमें 50 फ्लैट्स हैं, 50 ऑल रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, नॉट दिस टावर बिलोंग्स टू द कंपनी। इसके बाद उसमें से 25 फ्लैट्स तो अपने स्टाफ को रेजिडेंस के लिए यूज़ करने के लिए दे देते हैं, एंड 25 फ्लैट्स वो एज ए गेस्ट हाउस यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सो फॉर एज द फर्स्ट 25 फ्लैट्स विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस, अगर मान लीजिए उनके एम्प्लॉई रहते हैं, कुछ रहते हैं, दैट वुड बी exempt in the hands of the company because this is used for the residence purposes, and for remaining 25 flats which are used as a guest house, that would be taxable as accommodation service. Accommodation service में we have already seen कि अगर 1,000 से कम 1,000 पर डे से कम होगा then no tax, then accordingly 12%, 18% and 28%. एक और केस ले लेते हैं। दिस हैज बीन टेकन अप इन टू सेपरेट एडवांस रूलिंग। एक एज्यूम करिए कि एक पूरा एक हाउस है जिसमें 40 कमरे हैं या जिससे ज़्यादा कमरे हैं, वो किराए पे दिया जाता है, विच वुड बी फर्दर यूज बाय दैट इंडिविजुअल और कंपनी। व्हाट वुड हैपन? तो पहले एक एडवांस रूलिंग ले लेते हैं, तगार वासुदेवा। दिस इज द एडवांस रूलिंग इन वेस्ट बंगाल केस, जहाँ पर 40 रूम्स लीजिंग पर दिए गए। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि लुकिंग एट द लेआउट ऑफ द रूम्स which is rooms with toilet, it appears to be hotel, therefore this is not a residential dwelling, and the leasing of house by the landlord to the tenant would not be treated as residential dwelling. फ्रेंड्स, इस केस में अकोमोडेशन सर्विस तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा जो टैक्स होगा वो पूरा 18% पे टैक्स होगा। इसी तरह से एक और केस थी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी एपी का था, जहाँ पे लक्ष्मी तुलसी के केस में वहाँ पर 40 कमरे किराए पर दिए गए। रादर एक बिल्डिंग थी, द एंटायर बिल्डिंग हैविंग 40 रूम्स वर गिवन ऑन रेंट। अगेन द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी लुक एट द पर्पस, इट हैज फाइंड दैट द पर्पस ऑफ रेंटिंग बाय द सब्सिक्वेंट टेनेंट इज विद फूड एंड एमेनिटीज। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी वेंट इनटू द इंटेंशन एंड लुक्ड एट that this is not a residential dwelling and would be taxable as a commercial property. एक इसी तरह से और ले लेते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए सपोजिंग यही 40 कमरे या पीछे वाले केस में 70 रूम्स अगर बाद में किसी वर्किंग प्रोफेशनल्स को दिए जाते हैं या स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, अदरवाइज दिए जाते हैं, देन सर्टेनली इट वुड बी ट्रीटेड एज अकोमोडेशन सर्विसेज एंड वुड बी टैक्सेबल फ्रॉम 0 to 28%. फ्रेंड्स, मैं ये बाद में बार बार रिपीट नहीं करूंगा फॉर द सेक ऑफ द टाइम। एंड अकोमोडेशन सर्विसेज व्हेन वी से देन दिस वुड बी टैक्सेबल ओनली इफ द रेंट इज 1,000 रुपीज और मोर। एक और इसी तरह का केस ले लेते हैं कि सपोजिंग एक हेरिटेज बिल्डिंग है। ये हेरिटेज बिल्डिंग जो कि जनरली यूज होती है टूरिस्ट पर्पसेस के लिए, ये लीज पे दी जाती है। राजा साहब जो है हेरिटेज बिल्डिंग को लीजिंग पे दे देते हैं, then which will be used for the purpose of tourist accommodation. In that case, leasing of the heritage building by Raja Sahab would not be treated as a residential dwelling and dwelling. सेकेंड केस में तो सर्टेनली अकोमोडेशन सर्विस हो ही जाएगी। सपोजिंग यही हेरिटेज बिल्डिंग राजा साहब जो हैं अंबानी साहब को दे देते हैं। अंबानी साहब कहते हैं सर मैं तो उसे अपने घर के लिए तरह से यूज़ करूँगा। इन दैट केस इवन इफ इट इज़ हैविंग so many rooms, even if it is given to single family, then this would be treated as a residential dwelling and would be exempt. उसका साइज जो है मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई 2 कमरे में भी रहता है, कोई 1 कमरे में भी रहता है, कोई 50 कमरे में भी रह सकता है। दिस इज मटेरियल टिल द टाइम इट इज यूज्ड
by a single family for residential dwelling, that would be exempt. फ्रेंड्स, कुछ और छोटे छोटे केसेस ले लेते हैं, केस स्टडीज, स्मॉल केस स्टडीज, कि सपोजिंग मेरे पास एक शॉप है, मेरे पास 2 शॉप हैं एडजस्टेंट, और एक शॉप मैं अपने शॉप की तरह से यूज़ करता हूँ, दूसरी शॉप को मैं अपने सब स्टाफ को रहने के लिए दे देता हूँ। या मेरे पास एक रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें एक रूम में अपने सब स्टाफ को कहता हूँ कि आप रात को यहीं पर रहिए। इन दैट केस फ्रेंड्स, इट विल बी ट्रीटेड एज एकोमोडेशन सर्विसेज बिकॉज दिस इज नॉट ए रेजिडेंशियल dwelling. फ्रेंड्स, 2 conditions must be satisfied, that it must be residential dwelling and used as a residence. So unless both the conditions are satisfied, it would not be treated as a exempt service. इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई डायरेक्टर है, एम्प्लॉय, एक कंपनी लीज पे कोई फ्लैट ले लेते हैं, रेंट वुड बी पेड बाय द कंपनी बट एम्प्लॉय विल स्टे देयर, then in that case that would be exempt because this is the residential dwelling used for the purpose of residence. This has been held by AAR West Bengal in Borbeta State Private Limited. फर्दर इसी तरह का केस है कि सपोजिंग एक एम्प्लॉय है जो अपनी वाइफ के साथ 1 साल के डेपुटेशन पे बॉम्बे से दिल्ली आते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद कंपनी पे यहाँ पे आने के बाद वो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहते हैं। तो वेदर दैट वुड बी ट्रीटेड एज ए रेजिडेंशियल यूज, फ्रेंड्स रेजिडेंशियल यूज तो रहेगा, लेकिन सो फार एज द गेस्ट हाउस इज कंसर्न इट इज नॉट ए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एंड इट वुड बी ट्रीटेड एज ए अकोमोडेशन सर्विस। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा केस लेंगे, अगर मान लीजिए कंपनी की कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी है और वो 1 साल के लिए आकर के रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहते हैं, इन दैट केस दैट वुड बी ट्रीटेड एज ए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंस यूज एंड वुड बी एग्जम्प्ट। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं किसी को अपना मकान जो है वो शॉर्ट स्टे के लिए दे देता हूँ, दिस इज रेजिडेंशियल हाउस, आई गिव फॉर स्मॉल शॉर्ट पीरियड, मे बी 1 month और मे बी 3 months, in that case still the condition is satisfied till the time it is a residential house and used for the residence, that would be exempt. एक और केस ले लेते हैं कि सपोजिंग एक कंपोजिट बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे शॉप है और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे रेजिडेंस है और वो किराए पे दी जाती है। इन दैट केस और सिंगल रेंट चार्ज किया जाता है, तो इन दैट केस फ्रेंड्स दैट वुड बी ट्रीटेड एज ए मिक्स सप्लाई। द ग्राउंड फ्लोर इज द कमर्शियल एंड द अपर फ्लोर्स आर द रेजिडेंस पर्पसेस, देयरफॉर इफ द सिंगल रेंट इज चार्ज then that would be treated subject to tax. अगर separate रेंट होंगे then it would be taxable to the extent of the shop. इसी तरह से एक और छोटा सा केस ले लेते हैं कि सपोजिंग मेरे पास एक 4 कमरों का मकान है और मेरे पास 2 कमरे हैं, सपोजिंग मैं और मेरी वाइफ ही वहाँ पे रहते हैं, हम सोचते हैं 2 कमरे जो हैं वो पीजी रख लेते हैं उसमें। एक केस में हम क्या करते हैं, पीजी को कहते हैं कि भाई तुम रहिए यहाँ पे, खाना पीना सब आपका सेपरेट है, आपको सिर्फ रहना है, उसके साथ अटैच बाथरूम है सब। इन दैट केस friends, it will still be, because the house remains the residential dwelling, it would be exempt. लेकिन अगर हम उसी में पीजी को बोलते हैं कि हम भाई आपको ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह सब कुछ मिलेगा, इन दैट केस इट वुड बी कंपोजिट सप्लाई एंड वुड बी ट्रीटेड एज एकोमोडेशन सर्विस। तो फ्रेंड्स अगेन अगर 1000 से नीचे का हुआ तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि हम किसी ऑफिस में ही किसी होटल में ही अपना ऑफिस खोल लेते हैं। व्हाट वुड बी द डिसीजन, सपोजिंग मैंने एक 3 स्टार होटल में अपना एक ऑफिस खोल लेता हूँ, मंथली रेंट इज से 60,000, विल इट बी ट्रीटेड एज अकोमोडेशन सर्विस? नो फ्रेंड्स, अकोमोडेशन सर्विस की जो कंडीशन है वो अगेन दिस इज यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस। Nature of premise is different, but again accommodation service should be used only for the purpose of residential dwelling. इस केस में since the office is used for the commercial purposes, therefore it is a commercial use and would be taxable at straight away 18%. एक और फ्रेंड्स एक एंट्री और ले लेते हैं जो कि रिलीजियस प्लेस के है, जो कि जहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड है, उसको मैं ब्रीफली कवर कर देता हूँ कि रेंटिंग ऑफ द प्रिसेंट्स ऑफ द रिलीजियस प्लेस meant for general public by charitable trust is exempt in certain circumstances. Supposing renting of the room is there, then it would be exempt if the rent is less than
₹1000, अगर 1000 या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में सर्टेनली इट वुड बी ट्रीटेड एज एकोमोडेशन सर्विस, तो टैक्स उस हिसाब से लगेगा। इसी तरह से रेंटिंग ऑफ द प्रीमिसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया बाय द चैरिटेबल पर्पसेस, चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर ऑफ द रिलीजियस प्लेस would be exempt where charges are less than 10,000 पर डे पर पर्सन। अगर वहाँ पे मैं 2 अलग अलग वेन्यू देता हूँ, एक वेन्यू मिस्टर एक्स को देता हूँ, एक वेन्यू मिस्टर वाई को देता हूँ, और दोनों से 8-8 हज़ार रुपये लेता हूँ, देन इट वुड बी एग्जम्प्ट। इसी तरह से जो अगर रेजिडेंशियल प्लेस होता है वहाँ पे कुछ शॉप्स भी होती हैं, उन शॉप्स में भी अगर इफ़ द रेंट इज़ लेस देन 10,000 पर मंथ पर शॉप, देन दैट वुड अगेन बी एग्जम्प्ट। अगर उससे ज़्यादा का होगा देन इट वुड बी टैक्सेबल एट 18%। फ्रेंड्स, दिस वाज फ्यू इलस्ट्रेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल वर्सेस अकोमोडेशन। इसके बाद एक और केस ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई क्विट नोटिस देता है और या एविक्शन केस फाइल हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, वेदर दैट वुड बी टैक्सेबल और नॉट। सपोजिंग मेरा एक एग्रीमेंट खत्म होता है से ऑन 30 जून के बाद वो किराया मैं उनको कहता हूँ खाली कर दो, वो खाली नहीं करते हैं। मैं उसके बाद उनको राइटिंग में नोटिस दे देता हूँ, नोटिस देने के बाद भी नहीं खाली करते हैं। फिर मैं उनसे एक एविक्शन सूट डाल देता हूँ, एविक्शन सूट में कोर्ट के पास चले जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद वो कोर्ट कहती है कि आपको जितना भी अमाउंट है वो आपको कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। तो जो कोर्ट में जमा होता है उस अमाउंट का क्या स्टेटस होगा। फ्रेंड्स, पहले इसमें एक एडवांस रूलिंग आई चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में, दिस इज एडवांस रूलिंग बाय तमिलनाडु अथॉरिटीज। वहाँ पर उन्होंने कहा कि इट इज़ टैक्सेबल इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीज पीरियड। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़, एक बहुत अच्छी जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट की 2019 की जजमेंट है बाई मामूबाई ट्रस्ट वर्सेस सुचित्रा। उसमें इस पॉइंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रीट किया गया। उन्होंने कहा है कि on the pursuit of section 7 of the CGST Act, there should be a positive act from the landlord. Illegal occupation cannot be termed as a supply. Further stated that in the absence of reciprocal enforcement obligation, it would not be correct to characterize the tenant occupation of the premises against the consideration. It is incorrect. Similarly, they further said that where the landlord alleges the tenant is in legal occupation of the suit premises, then there would be no supply, no consideration and would not be taxable. ये फ्रेंड्स जो उन्होंने जजमेंट दी, जजमेंट बड़ी अच्छी जजमेंट है। इसको आप देखिए, किसी और कंटेक्स्ट में थी लेकिन जिसमें जीएसटी ही अच्छे से डिस्कस हुआ है। इसमें उन्होंने फर्दर का इसका जो स्कोप जो उन्होंने कन्फाइन करा है वो इलीगल ऑक्यूपेशन पर है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए डिफेंडेंट जो है, मतलब टेनेंट अगर रेंट पे करने से मना कर देता और उसके बाद अगर कोर्ट की डिग्री ले आते हैं, इन दैट केस सर्टेनली इट वुड बी टैक्सेबल। द स्कोप ऑफ द जजमेंट इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इलीगल ऑक्यूपेशन। और अल्टीमेटली कोर्ट ने जो हेल्ड करा कि आफ्टर द क्विट नोटिस the whatever amount is received it is damages, और अगर कोर्ट में जो भी पैसा जमा होता है फॉर इलीगल ऑक्यूपेशन during the period of eviction suit, that would be treated as massne profit and not taxable. फ्रेंड्स, बहुत अच्छी जजमेंट है, इसको आप जरूर देखें। 2-3 स्मॉल डिस्कशन और करते हैं फिर कंक्लूड करते हैं। अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें, इसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ हमें पता है कि मल प्रॉपर्टी है, मल प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं पर होगा जहां पर प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अगर मैं दिल्ली में रहता हूं और माई प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मुंबई, मुझे वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिल्ली से ही IGST लगा सकता हूं, क्योंकि बॉम्बे में ना तो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है ना ही मेरी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए मुझे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। दिस वाज आल्सो क्लैरिफाइड इन सर्विस टैक्स एजुकेशन गाइड। वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि जो वो वाला जगह है वो मेरे फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इसी तरह से एक और केस आ जाता है, वो भी पिछले दिनों में बड़ा चर्चा का विषय रहा कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लॉकडाउन का पीरियड आया और लॉकडाउन में प्रॉपर्टीज बंद रही, लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, तो ऐसे में द टेनेंट्स वर फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू पे द रेंट। तो दे वेंट इनटू द नेगोशिएशन विद द लैंडलॉर्ड कि सर मैं आपका 1 लाख रुपए अगर मंथली का किराया है तो मैं इसको पे नहीं कर पाऊंगा, आप 50% पे करूंगा, 75% पे करूंगा, तो आप इसे रीनिगोशिएट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर इस केस में अगर रीनिगोशिएशन होता है, मान लीजिए
हम आज जुलाई में अगस्त में बैठ करके इसका रीनिगोशिएशन करते हैं तो के पूरे 2021 में हम आपको 1 लाख की बजाय 50,000 रुपये देंगे। तो फ्रेंड्स, सो फar as the subsequent month from the September onward, there will be no doubt, there will be no litigation because it is a pre-existing। लेकिन जो पहले 5 महीने बीत गए हैं हम उसे रीनिगोशिएशन बोलेंगे एंड डिपार्टमेंट वुड से दैट this is in the nature of discount and as per section 15 it was not pre-existing, therefore it would be taxable। So friends, I keep my fingers crossed and in my view that whenever renegotiation made, then renegotiation amount merges with the original contract, therefore in my view it would not be taxable, but certainly it would be a matter of litigation so far as the previous months are concerned, even if we made a agreement retrospectively from a back date। So friends, this was all about my discussion in respect of renting of the ML property, particularly in respect of accommodation service, commercial use and residential dwelling। Hope you have enjoyed। I like to thank Akash Jain also for his critical analysis of my pre-release version। Friends, my all deliberations and videos are available on my YouTube channel। You may have an access whenever you so desire। With this, I like to thank everyone। Thank you friends।